328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। शिमला ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ। ਏਆਈ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ। ਪਲਾਟ ਰੀਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰਾਧ। ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਸੁਰੇਨ। ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਸਿਹਤ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ ਚੌਕ ਦਾ ਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਵਾਦ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब रना वेख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन दा आगाज करते हैं वड्डी ते अहम खबर दे नाल। खबर जिथे 328 पावन ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई जिस दे विच एसआईटी ਦਾ पुनर्गठन कर दिता गया। पावन ਸਰੂਪ मामले दे विच एसआईटी ਦਾ ਹੁਣ पुनर्गठन ਕੀਤਾ ਗਿਆ जिस दे विच नवी एसआईटी ਹੁਣ पावन ਸਰੂਪਾਂ मामले ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। डीआईजी रोपड़ रेंज नानक सिंह ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ एसआईटी ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ एसआईटी ਦੇ ਵਿੱਚ एसएसपी खन्ना दर्पण ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ एसपी जो कि ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਨਾਥ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਏਸੀਪੀ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾਮਿਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਨਾਮਿਕਾ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਨੋਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੋਣਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਦਰਪਣ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐਸਪੀ ਨੇ, ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਸੀਗੇ
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ SP ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ACP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ SI ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ SHO C ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਰਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੱਥ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ SIT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ DIG ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਰਪਨ ਆਲੋਵਾਲੀਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੁਖਨਾਜ ਸਿੰਘ SP ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ACP, ਤਾਂ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ SHO ਥਾਣਾ C ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ACP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ SHO ਥਾਣਾ C ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। आगे बढ़ते हैं गल करते हैं अज SGPC अंतरिम कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधान धामी की अगवाई दे विच बैठक होगी। सो यानी रघबीर सिंह नूं दिते नोटिस से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ SGPC ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SGPC ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ अंतरिम कमेटी की बैठक सदी गई है। तो फिलहाल की कुछ अहम फैसला इस लिया जा सकता वेखना होगा। सो 72 घंटिया के सारे सवालों के जवाब मंगे गए सन। तो उत्थे मीटिंग के सालाना बजट इजलास दीयां तारीखां का भी ऐलान हो सकता है। तो तमाम होर मुद्दों पर भी गलबात हो सकती है। पर इसे नाल दस दिए कि यानी रघबीर सिंह नूं लैके साबका जथेदार नूं लैके भी गलबात कर सकते हैं। तो दस दिए कि 19 फरवरी नूं जिथे रघबीर सिंह दे वल्लों SGPC ते इल्जाम लगाए गए सी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वालों बड़े भ्रिष्टाचार के इल्जाम लगाए गए सी। धामी दा रघबीर सिंह नूं नोटिस 72 घंटिया दे विच सबूत मंगे गए ने जदों अगली मीटिंग धामी दे वालों सदी गई सी। सो 22 फरवरी नूं जिथे रघबीर सिंह दे वालों अल्टीमेटम दिता गया। अपने जवाब दे विच उन्हां दे वालों कहा गया कि जो मैं सवाल कीते ने पहला तुसीं उन्हां दा जवाब देवो। गलबात करदे साडे सहयोगी राजीव शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने। राजीव, अहम बैठक होण जा रही है, अहम फैसले ले जा सकते हैं, की कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया कि ये जिहड़ियां चीज़ां ने अज दी इस मीटिंग दे विच जो है उस दे उत्ते बहस या चर्चा हो सकती है। तो अज दी मीटिंग दे उत्ते सारियां दियां नज़रां टिकियां होईयां ने, क्योंकि SGPC का जिहड़ा सालाना बजट है वो भी बहुत जल्द जो है उसके लिए इजलास जिहड़ा बुलाया जाना। तो उस दी तरीकां नूं लैके भी अज चर्चा होएगी। उस तो इलावा जिहड़ी सब तो वध इस वे इस मीटिंग की चर्चा है, क्योंकि पिछली बार जो अंतरिम कमेटी की मीटिंग हुई सी ना उस दे विच जो है बाद दे विच जिहड़े SGPC के प्रधान ने हरजिंदर सिंह धामी उन्हां वल्लों ये जानकारी दी गई। एक तां जिहड़े साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्हां नूं भी नोटिस जारी करन दी गल कही गई सी। मानहानी का जिहड़ा दावा वो करन दी गल हुई सी। उस तो इलावा जिहड़े हैड ग्रंथी फिलहाल ने दरबार साहब दे ज्ञानी रघबीर सिंह भावें कि भी चर्चावां ने कि उन्हां नूं हटा दिता गया, पर अधिकारिक तौर पर हाले उसकी पुष्टि जी नहीं हुई। तो उसनूं लैके भी अज कोई वड्डा ऐलान SGPC दे प्रधान या अंतरिम कमेटी के जिहड़े मैंबर ने वो करते हुए नजर आ सकते हैं। जी अनामिका, बिल्कुल राजीव, जिस कदर वेखण नूं मिलिया है कि आमो सामने हुण एक पासे नजर आ रहे ने। तो फिलहाल होर भी जानकारी तुहाडे तों लैंदे रहांगे। नजर बनाए रखियो इस मीटिंग नूं लैके। तो फिलहाल दी घड़ी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई। आगे बढ़ते हैं ते रुक करते अगली वड्डी खबर दे वल। सो कारनी दी भारत फेरी तो पहला कैनेडा का रुख बदलता नजर आया। सो कैनेडा सरकार ने अपना बयान जारी करके कहा कि कैनेडा दे विच हिंसक अपराधां पीछे भारत का हथ नहीं है।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ तमाम ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ तमाम ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। वांगू जी, जिस कदर हुने बयान सामने आया कि कुछ मायने दे कटे जान। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कनाडा सरकार की तरफ से, जो कि रिपोर्टेड है वहां के मीडिया में, जिसमें ये कहा गया है कि अब भारत जो है वहां पर क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि जो ये एलिगेशन पिछली सरकार ने लगाए थे वो पहले ही गलत आरोप लगाए गए थे, वो पॉलिटिकल आरोप लगाए गए थे और कहीं ना कहीं जो इससे पूर्व प्रधानमंत्री कनाडा के रहे हैं, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए थे और खासतौर से जो उनके कैबिनेट में भी जिस तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे, उनके दबाव में आके भारत के साथ संबंध जानबूझ के खराब किए गए और बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाए गए। और हालांकि निज्जर की हत्या को लेकर बार बार भारत ने कहा है कि अगर कनाडा सबूत सौंपता है तो उस पर भारत एक्शन करेगा, जैसे कि अमेरिका ने किया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब जब नई सरकार वहां पर आई है और जल्दी ही कनाडा के नए प्रधानमंत्री भारत दौरे पर निकलने वाले हैं और कल देर शाम वो भारत पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बड़ा स्टेटमेंट है। ये पॉलिसी शिफ्ट कनाडा की ही है कि उनका जो रवैया है भारत को लेके वो बदला है। और ऐसे में जब भारत और कनाडा के संबंध एक बार फिर से रीसेट होने वाले हैं और नई शुरुआत होगी, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट जो है ये कनाडा की पॉलिसी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट है वहां की सरकार का। बिल्कुल सुरेंद्र जी, इस ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से माइक कार्नी पहुंचने वाले हैं 2 दिनों के दौरे पर, पहले वो मुंबई जाएंगे और सोमवार को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी दिल्ली में। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी कनाडा सरकार जो है वो कदम उठा रही है। और ये भी खबर है कि डेविड कोलमन हेडली के जो सहयोगी तहवुर राणा है, जो कि कैनेडियन सिटीजन रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप भी छीनी जा सकती है। बहुत जल्दी इसको लेकर प्रोसेस भी शुरू किया जा चुका है। और वहीं हमने ये भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से एक माहौल बनाया गया दुनिया भर में और उन्होंने कनाडा को लेकर भी खुलेआम बयान दिए थे, तो ऐसे में कनाडा जो है वो अपने संबंध जो है वो मजबूत करना चाहता है। और भारत एक बहुत प्रभावशाली देश है इस पूरे रीजन में, इसलिए ये विजिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी दे लई। सो फिलहाल ये अहम बयान जो कि है कनाडा सरकार के वालों जारी किया गया है। सो साफ तौर पर कहते नजर आए नहीं कि भारत का हुण कोई अपराधिक घटनावां विच हथ नहीं है। सो इस भारत दौरे तो पहला पीएम मार्क कार्नी का यह बयान। आगे बात गल करते आइए समिट के मुलजमां की गिरफ्तारी ते भारी हाई वोल्टेज ड्रामा वेखण नूं मिलिया। सो हाई वोल्टेज ड्रामे तो बाद 3 मुलजमां नूं लैके दिल्ली पुलिस हुण रवाना हो चुकी है। सो कोर्ट तो अद्धी रात ट्रांजिट रिमांड लिया गया। ये समिट दे विच हंगामे दे मुलजमां नूं लैके दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी ते हिमाचल पुलिस आमो सामने हुई ने। हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमो सामने होंदे नजर आई। हाई वोल्टेज ड्रामा होया, बहसबाजी हुई, तस्वीरां सामने आईयां ने, वीडियो दे विच वेखिया गया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस दे मुलाजमां ते FIR कीती। इस दे विच 3 लोकां नूं किडनैप करन दे शिमला पुलिस दे वल्लों इल्जाम लगाए गए दिल्ली पुलिस ते। तां होटल दे विच रुके यूथ कांग्रेस वर्करां नूं अगवा करन दे इल्जाम लगाए गए ने। दस्सदे कि कल पूरा दिन हिमाचल दे विच हाई वोल्टेज ड्रामा चलदा रहा। दिल्ली पुलिस दे जवान 4 गड्डियां दे विच सवार होके चढ़गांव पहुंचे और होटल दे विच रुके यूथ कांग्रेस के 3 वर्करां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो उत्थे हिमाचल पुलिस नूं जिवें ही गिरफ्तारी की खबर मिली तो तुरंत नाके लगाए गए। तो दिल्ली पुलिस दीयां गड्डियां नूं हिमाचल पुलिस दे वल्लों वार-वार 3 थावां ते रोकिया गया सी। ISBT शिमला, शोगी और धर्मपुर सोलन दे विच रोकिया गया। जिस तो बाद शिमला पुलिस का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने बिना स्थानक पुलिस नूं जानकारी दित्ते ये कार्रवाई की है। मेरी आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपने आंखों से देखा है। मैंने कहां देख लिया, मैंने कहां देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला? कोर्ट से कितने बजे निकला? तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया सर? आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको आप मेरे को आप मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अभी एक FIR रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूं, कर रहे हैं।
हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे पहले वो कह रहे थे सीज किया है, वो है नहीं इनके पास ना, कर नहीं सकते ना सर। ऑलरेडी हमने जो चीज ऑलरेडी डीवीआर हमने सीज कर रखा है और आप उसके सस्पेशन पे कि डीवीआर चोरी हुआ है व्हिच वाज ऑलरेडी सीज्ड बाय अस, हमने डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रखा है। आप उसको सर्च करने के लिए मेरी गाड़ी कैसे सीज कर सकते हो? पॉसिबल नहीं सर। अब आप सभी लोग जा रहे हैं वापस? थैंक यू। ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, मजिस्ट्रेट साहब ने अप्रूव कर दिया है ट्रांजिट रिमांड, और अक्यूज्ड को कंसर्न लोकल मजिस्ट्रेट को पेश करने जा रहे हैं। आप लोकल में यहाँ से हिमाचल के नहीं है, उसके बावजूद भी गलत कामों में गलत तरीके से जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसमें उनको संरक्षण देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय कार्य जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदर्शन होते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व आमदा हुआ है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना, ये बहुत ही और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਰੀਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰਾਧ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਜੀਐਲ ਪਲਾਟ ਰੀਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹੋਰ देखो, ये मामला 2 दशक पुराना है। पंचकूला एजेएल प्लाट आवंटन मामला है, जिहदे विच साबका सीएम भुपिंदर सिंह हुड्डा नूं राहत मिली है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों। हाई कोर्ट ने कहा कि जिहड़े सीबीआई द्वारा जिहड़े एलीगेशन लगाए गए ने उन्हां नूं खारिज किया गया और कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र विच अपराध सिद्ध नहीं हुंदा कि किसी भी तुसी चीज़ नूं गलत ठहराने का अधिकार जांच एजेंसी नूं नहीं है। और इहदे विच जिहड़ी सारी प्रोसीजर फॉलो किया गया सीगा वो बेशक चाहे थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि वो गलत है और अवैध है, ये जांच एजेंसी किवें तय कर सकती है? क्योंकि सीबीआई ने एलीगेशन लगाया सीगा कि जिहड़ा प्लॉट आवंटन किया गया ये नियमां दे खिलाफ सी और इससे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नूं 63 लाख का नुकसान होया सीगा। इसी आधार ते आरोप लगा के धारा 120 420 के तहत आरोप लगाए सीगे। हाई कोर्ट ने 44 पेज के फैसले में कहा कि सारा कुछ जो प्रोसीजर होया उसे किसी भी अदालत ने या किसी भी अथॉरिटी ने उन्होंने कदे चैलेंज नहीं किया, उन्होंने कदे डिक्लाइन नहीं किया। और जब तक ये प्रॉपर किसी एक लीगल तय तो अवैध ना हो जाए तो जांच एजेंसी केवल अपने असेसमेंट के आधार पर ही नहीं कह सकती कि ये अपराध है। तो इस बेस से राहत मिली है भुपिंदर सिंह हुड्डा नूं। जी उमेश, थोड़ा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ C17 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੋ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਏਜੀਐਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ C17 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਏਜੀਐਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ तो भ्रष्टाचार रोकू कानून के तहत अपराध का आधार नहीं है। तो हाई कोर्ट के वालों किया गया है, जिसको तो क्लीन चिट दी गई है। सीबीआई ने केवल हुड्डा नूं मुलजम बनाया है। सो पुनर्वण का आदेश इकल्ले हुड्डा का नहीं सी, सीबीआई ने केवल हुड्डा नूं मुलजम बनाया। तो हाई कोर्ट कहते नजर आई अथॉरिटी ने
ਸੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। रुक करते अगली खबर का। संगरूर के पिंड महिला चौक का जवान शहीद हो गया। मणिपुर के विच गुरप्रीत सिंह शहीद हुए ने। दस कि देश विरोधी अंसरां दे नाल मुकाबले दौरान उन्हां दा वो शहीद हो गए ने। दस कि अज पिंड महिला चौक लियांदी जा सकती है उन्हां दी मृतक दे। सो 21 साल तो फौज दे विच सेवावां निभा रहे सन गुरप्रीत सिंह ते इस दौरान वो शहीद हो गए ने। ते गलबात करदे हां साडे सहयोगी चरणजीव कौशल साडे नाल जुड़ चुके ने। चरणजीव, अज मृतक दे लियानी है इत्थे जद्दी पिंड की कुछ होर जानकारी? बिल्कुल आनंद का कितने कि महिला चौक पिंड दे विच जम दा पूरा माहौल है, क्योंकि 21 साल तो जिहड़े हौलदार गुरप्रीत सिंह हैगे सी देश दी फौज दे विच जिहड़ियां हैगे सी सेवावां निभा रहे सी, पर पिछले दिनी मणिपुर दे विच जिहड़ा हैगा देश विरोधी ताकतां नाल लड़दे होए शहीद हो गए। इस तो बाद कितने पूरे इलाके दे विच जिहड़ा गमगीन माहौल हैगा वो बनया होया। अपने पिछे पत्नी पुत्र ते धी नूं छड्ड गए सी शहीद गुरप्रीत सिंह। कितना किते अज काफी ज्यादा पूरा जिहड़ा हैगा गमगीन माहौल बनया ते तकरीबन दोपहर तक जिहड़ी हैगी मृतक देह हैगी पार्थिव शव हैगा वो पिंड दे विच लिआंदा जाऊगा, जिथे पूरा जिहड़ा हैगा संस्कार उन्हां दा कीता जाऊगा। हर एक तरीके नाल उन्हां नूं सन्मान दिंदे जी जी बिल्कुल चरणजीव, थोड़ा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सो मणिपुर के विच गुरप्रीत सिंह जो शहीद हुए ने 21 साल तो इत्थे सेवावां निभा रहे सन। सो फिलहाल दस दें कि अज उन्हां दे जद्दी पिंड उन्हां दी मृतक देह लिआंदी जावेगी ते सरकारी सम्मानां दे नाल उन्हां नूं अंतिम विदाई दित्ती जावेगी। इस नाल ही अगे वधदे ते गल करदे हां। झारखंड के साबका सीएम चंपई सोरेन के पोते की अचानक मौत हो गई। हिमाचल के मनाली दे विच करीबन 22 साला वीर सोरेन की जान चली गई। दस दी कि दोस्तों के नाल घूमन गया सी मनाली वीर सोरेन, तो होटल दे विच वीर सोरेन की अचानक सेहत बिगड़ती है, सिर दर्द होंदा है, तो जिस तो बाद दस दी कि मनाली के हस्पताल दे विच इलाज दौरान उसकी मौत हो गई है। तो दुखदाई खबर है सामने जिथे साबका सीएम के पोते की अचानक मौत हो गई। हिमाचल दे विच घूमन अपने दोस्तों के नाल गया सी कि इस दौरान सिर दर्द की शिकायत उसके वालों की जाती है कि फिलहाल जदों फौरन उसनूं हस्पताल दाखिल करवाया गया तो उत्थे ही मृतक ऐलान दिता गया। तो सिर दर्द की शिकायत तो बाद सेहत बिगड़ी है। तो गलबात करते हैं साडे सहयोगी सचिन साडे नाल जुड़ चुके हैं। सचिन, सिर दर्द की शिकायत दी गई जिस तो बाद मृतक ऐलान दिता गया, फिलहाल की कुछ जानकारी? जी हाँ, देखिए अनामिका जी, जिस तरह बात करें, जो ये लड़का था ये अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर घूमने के लिए आया था, और इस दौरान जो है जब ये सेथन और सोलनाला में वहां पर घूमने के लिए गया था, तो उसके बाद जब ये वापस अपने होटल लौटे तो इन्होंने जो है सिर दर्द की जो है की जो बात इन्होंने कही थी, और उसके बाद जो है कुछ टाइम ये अपने जो होटल के जो कमरे में थे वहां पर इन्होंने रेस्ट किया, और इस दौरान इन्होंने जो कुछ जो है दवाई भी यहाँ पर जो ली थी, लेकिन इसके बाद जो है इनकी तबीयत और खराब हुई, और उसके बाद जो है इन्हें सिविल अस्पताल जो है वो मनाली ले जाया गया, जहां पर जो है उपचार के दौरान बताया जा रहा है कि इनकी जो वहां पर मृत्यु हुई है। तो देखिए जिस तरह जो है मनाली में इसके बाद जो है काफी देखने को मिलता है कि जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, खासकर अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो मैदानी क्षेत्रों से जब सैलानी आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें जो सांस की दिक्कत जो है यहाँ पर रहती है, और ऐसे में कल जब ये जो घटना सामने आई है उसके बाद जो है जो जिस तरह की जो घटना है जिसमें डॉक्टरों के द्वारा भी ये कहा गया है कि उनको जो है सांस लेने की जो है उसमें दिक्कत जो है पाई गई, और जो इनकी जो ये मृत्यु जो हुई है वो नेचुरल डेथ के कारण हुई है। जी सचिन, क्या परिजनों को संपर्क कर लिया गया? ऐसे में क्या कुछ जानकारी अब सामने आई है? जी हाँ, देखिए इसमें जो इनके परिजन थे उनको जो है संपर्क कर लिया गया है, और वे जो है बीते कल यहाँ पर जो है मनाली पहुंचे थे, और उसके बाद जो है यहाँ पर जितनी भी जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी यहाँ पर कर दी गई है, और उसके बाद जो है शव को जो है उनके परिजनों को लिए जो है सौंप दिया गया है। जी सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।